Good morning, everyone. Today we are going to start again most important topic, that is income determination. In this topic, we shall learn today a lot of things and very important things we shall learn. आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से लिखिएगा एक एक चीज को, जिसमें कि वी शैल लर्न कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, concept of consumption function, APC, average propensity to consume, its features, as well as we shall learn marginal propensity to consume. Apart from these we shall learn more linear consumption function also. And you know, the numericals which are asked from the income determination chapter is based on these concepts. So this topic is very important. I am going to explain everything very clearly. You will learn many things. So let us start. First, consumption function. In previous class, we have already learned that consumption curve as well as income curve also, that is aggregate demand curve. During aggregate demand curve we have discussed already the consumption curve. Right now again we shall discuss, as well as we shall learn many things, the features of consumption function, what we get from the consumption function. So let us start. Before drawing consumption function we have to take a schedule. Prior to that, learn what is consumption function. So start writing. Consumption function means the functional relationship between total consumption and total disposable income. So consumption function means the functional relationship between total consumption and total disposable income. Right now I shall discuss what is disposable income. So just to right now, this is the definition of consumption function. So algebraically, thus consumption function is the function of y. So you will write algebraically, this consumption function can be written like this. Now, one most important thing, what is disposable income? It means what? This is the relation function in coordinate geometry you will learn in class 11. So here consumption is the function of y. You will read like this. It means what? Consumption depend on y. Income पे depend करता है. This equations or functional relation points out that consumption depend on y. So we shall read this, consumption is the function of y. So either you write in theoretical form, in text form like this, consumption function means the functional relationship between total consumption and total disposable income. This can be written like this in algebraic form. Consumption is the function of y.
Now question arises, what is total disposable income? Try to understand what is total disposable income. Suppose someone income is 50,000. 50,000. This is why. The income is how much? Total income is 50,000. And 10% he has to pay tax. How much tax? 10% he has to pay tax. So the 10% of 50,000 will be 5,000. 5,000. So subtract it, you will get 45,000. After paying tax, whatever amount remains with you, that is called disposable income. So here is, you cannot dispose this 50,000. You have to pay this 5,000 as tax, and remaining 45,000 only you can use, you can dispose. That is why this is the 45,000 is the disposable income. So note down, the income after subtracting the tax is called disposable income. So now you have understood what is consumption function. This consumption function gives us law of consumption. So write down what is, we shall discuss detail, and this consumption function is also known as propensity to consume. We shall learn right now. So write down at place of consumption function, you can write in bracket propensity to consume also. So this consumption function gives us law of consumption. Now try to understand what is law of consumption. Write down all of you. Law of consumption states that as income increases, consumption also increases. But less than the increase in income. What is this? Try to understand law of consumption. Law of consumption states that as income increases, consumption also increases, but less than the increase in income. What it implies that if someone income, we shall discuss in detail. Suppose someone income is here I am taking example 25,000, and at this is why, and here is consumption. Consumption is suppose 20,000. In all this education, health, clothes, everywhere, income is 25,000. Sorry, 25,000. His expenditure, consumption is 20,000. Suppose income becomes 30,000. So this consumption will also increase. It cannot, at this place, it cannot be 20,000. It will increase. It may be 21,000, it may be 22,000, but less than the increase. It cannot be 25,000 because 5,000 has increased. Here consumption is 20,000. So it may be 21,000, 22,000, 23,000 like this. Note, it will, but this value will be greater than 20,000 and less than 25,000, because less than 30,000 25,000, sorry, because income has increased 5,000, so consumption will be in the range of 5,000.
it will be 21,000, 22,000, but less than 25,000. 5,000 income has increased, so 5,000 income consumption cannot be increased, because what law says? Law of consumption says that income increases. How much income has increased? Here income is 5,000. Increase in income is 5,000. So this consumption cannot be increased equivalent to income. Consumption will increase, but less than the increase in income. Income से कम होगा 20,000, 5,000, 25,000 नहीं हो सकता यहाँ. ये जब भी होगा 20,000 से ज्यादा, 25,000 से कम. 5,000 इनकम में कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता है. ये तुम्हारा 24,500 हो सकता है, 21,000 हो सकता है, बट इसका वैल्यू लेस देन 5,000 होगा. 5,000 से कंजम्पशन कम ही होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजम्पशन. आई थिंक यू हैव आपने समझ लिया होगा. नाउ कंजम्पशन फंक्शन को थोड़ा और क्लियर हम लोग करें तो मुझे लॉ ऑफ कंजम्पशन आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा आपने. मैं इसको मिटा रहा हूं. अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे इसके बारे में. इसको भी मैं थोड़ा मिटा रहा हूं. वी नीड मोर स्पेस टू एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन. Now, consumption function, as I have told you, you can write in bracket propensity to consume also. Propensity to consume. Now, to explain the concept of consumption function, we have to draw the diagram. And prior to that, we have to take a schedule, because every diagram is based on certain schedule. So we have taken, this is Y. As you know, Y indicates income. Earlier we have already discussed with you. And this is consumption. We are taking same previous. We have taken several times the same schedule. We shall take. We shall start from 0, and consumption 0 is 20,000, because you know consumption cannot be 0 in the economy. And we shall increase 40, 80, 120, 160 and 200. Here we are taking 50, 80, 110, 140, 170. When we say draw, suppose I am going to draw this on a graph paper. We depict this on a graph paper. We are measuring income on x-axis, income, or you can write output also. This is origin, and here we are going to measure consumption. You can write consumption also, either in short form. You can write only C also. Consumption. Now I am drawing here the income curve. As you know, income curve, that is Y, C plus S. The moment we draw 45 degree line, already it is discussed when in previous class. पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि 40 AS कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, that is income curve, यानी और that was 45 degree line. So I have taken directly 45 degree line as income curve, because we have to explain the consumption function curve. This is consumption function schedule, and 45 degree line is income curve, and income Y equal to always C plus S. Income is either consumed or it is saved. That is why you are knowing this. It was discussed in detail in previous class. का वीडियो देख लेना, पूरी अच्छी तरह से बताया गया उसमें. मैं थोड़ा इसमें क्लियर कर दूं. ये हमारा इनकम कर्व है 45 डिग्री लाइन, और I am going to draw consumption curve. ये consumption curve है. This is the consumption curve, and this part consumption curve begins above the origin. आप देखो origin से शुरू हुआ है, और this part is called
Autonomous, that is indicated by C bar. Autonomous consumption. Consumption cannot be zero even at any level of income. Even consumption जीरो नहीं हो सकता है. अगर इनकम जीरो है भी तो income at the origin, income is zero, but consumption curve has begins above the origin and it is upward sloping. You can see this point where point B, this point is called break even point. This point where consumption, here what? Consumption equal to income, C equal to Y. You can write here C equal to Y. And where C equal to Y, S equal to 0. Saving becomes 0. Naturally, whatever income we have, that is we are consuming. Whatever Y equal to C you can write here. Otherwise, or C equal to Y, both are same. Consumption जो है इनकम के बराबर है, तो नेचुरली सेविंग इज 0. So that indicate saving equal to 0. This point B is called break even point. Prior to that, you indicate this saving. Here, this area is called this DIS, double S you write, this saving. And this part is called saving, or you can write positive saving. Positive saving. This part is dis-saving, or you can write negative saving as you like. Either you write dis-saving or this portion is called positive saving. Now, what we get? If you see this, we get many things. And note down. First, you note down what we get from the consumption curve, consumption function curve. Many things we get. First, we get that as income consumption curve is upward sloping. So note down first, as income increases, consumption also increases. First we get what we get, as consumption increases, consumption also increases. That is why it is better you write down. That is why consumption curve is upward sloping curve. That is why इसी कारण से upward sloping है. You can see upward sloping curve. It moves upward. So why it is so? As income increases, जैसे income increase करता है, consumption also increases. Consumption also increases. That is why first we get as income increases, consumption also increases. That is why consumption curve is upward sloping curve. First concept you get. पहला concept you get from this consumption function. Second, what we get? We find that consumption cannot be zero. Write down. Consumption cannot be zero even at zero, even at zero level of income, even at
zero level of income. Consumption at zero level of income is called autonomous consumption. Autonomous consumption, it is represented by C bar. You mark like this, C bar. It is represented by C bar, autonomous consumption. What is next concept we get? Consumption cannot be zero. You can see here, even income is zero, even then certain level of consumption. This consumption is called autonomous consumption, that is represented by C bar. So second concept we get. दूसरा हमने पाया कि कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है किसी भी लेवल पे, और कंजम्पशन एट जीरो लेवल इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी बार से डिनोट किया जाता है. तो दो चीज आपने सीखा कि कंजम्पशन कर्व अपवार्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज एज कंजम्पशन इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज, इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज. दैट इज व्हाई कंजम्पशन कर्व इज अपवार्ड स्लोपिंग कर्व. दूसरा चीज सीखा कि एट जीरो कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है. कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. कंजम्पशन जीरो लेवल पर भी नहीं होता है, इनकम पर भी, और सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी. और वह कंजम्पशन क्या कहलाता है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. इसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, जिसको कि सी बार से इंडिकेट किया जाता है. दैट इज व्हाई ये आप कंजम्पशन कर्व जो स्टार्ट होता है बिगिंस फ्रॉम एबव द ओरिजिन, और जो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ, दिस इंटरसेप्ट, बिकॉज कि ये जो कंजम्पशन कर्व है वाई एक्सिस को काट रहा है, तो यहां इंटरसेप्ट फॉर्म होता है. दिस रिप्रेजेंट्स ऑटोनोमस कंजम्पशन. वी शैल डिस्कस लेटर व्हाट इज इंटरसेप्ट, एवरी मेनी थिंग्स वी शैल यू विल लर्न. तीसरा चीज आप सीखते हैं, व्हाट यू लर्न थर्ड, दैट व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू जीरो, राइट ऑन, when consumption becomes equal to income, at that point is called, that point is called break even point. So break even point, this point is break even point, point B as shown in at point B. Here we are right on point B is break even point as shown in the diagram, as shown in the diagram. आप डायग्राम में देख सकते हो, पॉइंट बी है, यहां पर C इक्वल टू वाई है, कंजम्पशन इक्वल टू वाई, और जहां पर सेविंग इक्वल टू, एंड हियर यू राइट ऑन रूल, हियर S इक्वल टू 0. सेविंग नेचुरली 0 होगा, व्हाटएवर इनकम जितना है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो नेचुरली सेविंग तो 0 होगा ही. सो दैट आई हैव इंडिकेटेड ऑल पॉइंट बी इज ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इक्वल टू वाई, इनकम के बराबर, दैट इज वाई सेविंग इक्वल टू 0. ये आप अच्छी तरह से लिख लो. तीसरा पॉइंट,
थर्ड पॉइंट, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। आप देख लो इस पॉइंट पे बोथ आर कोइंसाइड, ये पॉइंट भी इज कोइंसाइड है, दोनों पे है, यहाँ पे ध्यान रखना है चीज, मैथमेटिक्स का चीज है ये। पॉइंट बी वेयर इट रिप्रेजेंट्स बोथ कंजम्पशन और इनकम। इनकम कर्व देखो बराबर है यहाँ पे ये इनकम कर्व बीच से क्या है ना, तो अगर 80,000 है 45 है व्हाटएवर कंजम्पशन इट इज जस्ट इक्वल टू द इनकम। दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड break even point, and at break even point saving is zero because consumption is equal to income. Fourth point, what we get prior to, इसके पहले आप देखो इस पॉइंट के पहले ये जो गैप है, इनकम लेस देन कंजम्पशन, इट मींस व्हाट, इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है। तो नेचुरली मान लो इनकम आदमी का 5,000 हो, 5,000, और अगर एक्सपेंडिचर उसका ये इनकम y इक्वल टू 5,000 और कंजम्पशन अगर ज्यादा हो 7,000, क्या होगा, ये -2,000, ये सेविंग हो जाएगा -2,000, तो निगेटिव सेविंग होगा ना। तो यहां देखो आप प्रायर टू ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन कर्व ज्यादा है, कंजम्पशन कर्व ये है आपका, ये इनकम कर्व है, यानी कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। तो कंजम्पशन जैसे ही ज्यादा इनकम से होगा तो निगेटिव सेविंग होगा, जिसको डिस सेविंग हम लोग कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, राइट डाउन। फोर्थ कंसेप्ट वी गेट फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। चौथा क्या पाते हैं, प्रायर टू, प्रायर में पहले पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रायर टू ब्रेक इवन point consumption is more than income, write down, consumption is more than income, it means this saving or negative सेविंग। ना देखो ब्रेक इवन के पॉइंट, ये जो एरिया है आपका, दिस गैप, ये गैप, दिस गैप इंडिकेट्स डिस सेविंग, हमें लिखा भी है, इंडिकेट कर किया है यहां पर, देख लो आप, डिस सेविंग एरिया, दिस पार्ट, एरो हम शो कर देते हैं, दिस पार्ट, और यहां पे आपको मैं एरो लगा देता हूं, यानी ये होल पार्ट ये पॉजिटिव सेविंग है, और ये पार्ट जो है डिस सेविंग, यहां लिखा हुआ है डिस सेविंग प्रायर टू ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाई इट इज सो, बिकॉज कंजम्पशन ज्यादा है, देखो ना कंजम्पशन यहां से है, इनकम इतना ही है यहां किसी भी पॉइंट पे। सो प्रायर टू ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, इट मींस डिस सेविंग और नेगेटिव सेविंग, ये एरिया नेगेटिव सेविंग है। पांचवा चीज वी गेट आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस। देखो अब कंजम्पशन कम हो गया, अब इनकम इज मोर, consumption is less than income, it means positive सेविंग। अब देखो इसमें, इसके बाद पॉजिटिव सेविंग है, बिकॉज कंजम्पशन इज लेस, हमने लिखा है आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन इनकम,
यहाँ इनकम ज्यादा है, देखो इसके ऊपर आ गया इनकम, कंजम्पशन कर्व से ऊपर है। इट मींस व्हाट, कंजम्पशन, इसका मतलब क्या होगा कि मान लो इनकम जो है 10,000 है, वाई इनकम को दर्शाता है, और कंजम्पशन मेरा 7,000 है, तो ये जो मेरा, तो एस कितना होगा, सेविंग कितना हो जाएगा, दैट इज 3,000। तो ये सेविंग है, दैट इज पॉजिटिव सेविंग। सो एरिया आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो एरिया शो कर रहा है, दिस एरिया रिप्रेजेंट पॉजिटिव सेविंग। ये 5 कंसेप्ट आपने सीखा, मैं रिवाइज के लिए फिर से बोल रहा हूं एक एक करके। पहला, यू लर्न एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज। देखो आप, इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है इधर, दैट इज व्हाई कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। दूसरा चीज क्या सीखा आपने, कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो। देखो आप, यहां इनकम जीरो है, इवन कंजम्पशन इतना शो कर रहा है हमको। दिस consumption at zero level of income is called autonomous consumption, because there is always certain level of consumption exist in the economy even income is zero। ये दूसरा चीज सीखा आपने। तीसरा सीखा आपने, when consumption becomes equal to income, that point is called break even point। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे कंजम्पशन दोनों इक्वल है, देख लो आप, कंजम्पशन एंड बोथ आर इक्वल, बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच वन अदर, तो दोनों इक्वल है। ये 45 डिग्री लाइन है, तो यहाँ इस पॉइंट पे पॉइंट बी इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। एट ब्रेक इवन पॉइंट सी इक्वल टू वाई, इट मींस कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, एंड नेचुरली सेविंग विल बी जीरो, एस इक्वल टू जीरो। ये तीसरा चीज सीखा। चौथा, प्रायर टू ब्रेक इवन पॉइंट। फोर्थ क्या है, प्रायर टू ब्रेक इवन पॉइंट। देखो कंजम्पशन कर्व जो है लेस है, नीचे है, देखो आप, सॉरी इनकम कर्व, कंजम्पशन सॉरी कंजम्पशन इज मोर लिखा है मैंने, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तो जब कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम से तो नेगेटिव सेविंग होगा, दैट इज कॉल्ड डिस सेविंग। हमने यहां लिखा है डिस सेविंग, यू कैन राइट नेगेटिव सेविंग आल्सो। हमने यहां लिखा है फिर, और इट इज नेगेटिव सेविंग। डिस ब्रेक इवन पॉइंट मोर देन इनकम, इट मींस डिस सेविंग और नेगेटिव सेविंग। पांचवा हमने लिखा है, बताया आपको कि आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट द कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है। व्हाट इट इंप्लाइज, कंजम्पशन कम हो, कंजम्पशन ज्यादा, सॉरी इनकम ज्यादा, इनकम कम एवं है, एवं दिस कंजम्पशन कम, देख लो ना, कंजम्पशन यहां है, ऊपर है इसके, तो इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम, इट मींस सेविंग 3,000 है विद दिस एग्जांपल, व्हाट इट शोज पॉजिटिव सेविंग। सो आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट पॉजिटिव सेविंग, prior to break even point negative saving, and when consumption equal to income, that is break even point। consumption at zero income, consumption at zero level of income, autonomous consumption। so all these you learned, this is the concept of consumption function। please note down everything one by one। now I am going to remove this, we shall discuss the concept of प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, मैं अभी और क्लियर करता हूं। ये कंजम्पशन फंक्शन को ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। आई एम गोइंग टू क्लियर मोर व्हाट इज दिस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई एम रिव्यूइंग दिस बिकॉज आई हैव टू राइट मेनी थिंग्स। Now let us start concept of propensity to consume or consumption function, both are same।
It is already written above also. Propensity to consume और देखो मैं propensity to consume के बारे में आपको थोड़ा क्लियर और कर दूं। ये propensity to consume है क्या? कंजम्पशन फंक्शन है क्या? इट डिफर्स मैन टू मैन। देखो एक आदमी, एक बच्चा है, दो लड़के हैं मान लो, उसको आप 100 रुपया दो मेला देखने के लिए, तो क्या करेगा? एक बच्चा होगा उसमें से मात्र 10 रुपया खर्चा करेगा। मतलब यही है, हिज इकोनॉमीज नेचर, इन इकोनॉमी का नेचर है उसके अंदर, तो वो 90 रुपया लौटा चलाएगा। अब एक बच्चा जो है 100 रुपया दो, सेम अमाउंट, वो 90 रुपया खर्च करेगा, 10 रुपया लौटा के लाएगा। तो दोनों का नेचर में फर्क है। दिस इज प्रोपेंसिटी। एक आदमी की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक है, ही इज एक्स्ट्रावेजेंट, अनदर वन इज इकोनॉमीज है, वो निमित्त यही है। तो दोनों में फर्क रहता है और इसी कंसेप्ट को हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। हर आदमी का नेचर अलग अलग होता है। किसी का अगर 25,000 इनकम हुआ, ही विल स्पेंड 20,000। अगर किसी का इनकम 25,000 इंक्रीज कर गया तो वो 5,000 करेगा, 20,000 सेव कर लेगा। तो दिस डिफर, दिस नेचर इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन करने की जो नेचर होती है, प्रवृत्ति होती है, इसी प्रवृत्ति को प्रोपेंसिटी का मतलब ही प्रवृत्ति, एंड द नेचर ऑफ different people are different, so that with increase in income how much a person will increase, it depends upon the propensity of a person। उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी propensity to consume है कितनी है। So let us discuss concept of propensity to consume। Concepts of propensity टू कंज्यूम। अब ये कंसेप्ट ऑफ प्रोपेंसिटी के दो कंसेप्ट हैं। पहला लिखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज इट इज रिटन इन ब्रैकेट एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू consume। Write down what is this average propensity to consume, APC। APC is the ratio of total consumption to total income। What is this? APC is the ratio of total consumption to total income। Thus APC equal to C by Y। ये क्या है? इसका रेशियो है टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का। टोटल डिस्पोजेबल इनकम यू कैन राइट हियर, इट इज बेटर कंजम्पशन टू टोटल इनकम, इन प्लेस ऑफ टोटल इनकम यू डिस्पोजेबल इनकम यू कैन राइट हियर। Disposable income, here you write down disposable income, it is the ratio of total consumption to total disposable income। Either you will write income, it means automatically disposable income, you cannot dispose the tax part of income so that it is APC equal to C by Y, where C is represents consumption, Y represents income। Now it is more important you write down features of APC, average propensity to। What are the feature? First feature is APC can be greater than 1। It means what? The value of APC can be greater than 1। Sorry, here we write 1। Value of APC can be greater than 1। पहला पॉइंट है ये, इसको समझो आप लोग। It happens, write down, it happens when
It happens when consumption is more than income. Now try to understand एपीसी का वैल्यू एक से अधिक हो सकता है. कैसे, कब होगा ये? It happens when consumption is more than income. कंजम्पशन ज्यादा हो. मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां क्लियर कर रहा हूं मैं इसको. मान लो कि कंजम्पशन आपका है 8000 और y आपका है मान लो 6000. इनकम यहां पर देखो 6000 है, कंजम्पशन आपका कितना आ रहा है 8000 है. ये एग्जांपल ले रहे हैं. या दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, 10000 का भी ले सकते हो, 8000 का ले सकते हो. दूसरा एग्जांपल यू कैन रेट. अगर आपका कंजम्पशन मान लो 10000 है, ये भी लिख सकते हो कुछ भी 10000, और आपका कंजम्पशन जो है इनकम आपका 8000 है. ये 10000 ये 8000 है. अब आप करो एपीसी निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एपीसी. तो एपीसी क्या होगा? एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई. अभी हमने बताया है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम. तो सी कितना है आपका 10000. तो यहां 10000 लिखेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय इनकम सी बाय वाई. अब आप इसको कैंसिल कर दो. 330 2 2 4 जा 2 5 जा, यानी आपका 1.25 इसका आंसर आ रहा है. 4/5 का 1.25 आया. इट मींस व्हाट? ये बोलो 1.25 इज ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? एक से ज्यादा है कि नहीं वैल्यू इसका? अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हो. दूसरा एग्जांपल मान लो आपका सी कंजम्पशन आपका है 10000 या आप 8000 ले लो. 8000 दूसरा एग्जांपल 8000 और आपका इनकम मात्र है 4000. इस स्थिति में सी का वैल्यू ज्यादा होगा. देखो एपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8000 डिवाइडेड बाय इनकम 4000 कट जाएगा ये 2. तो 2 इज ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? तो एपीसी का वैल्यू जो हमें 2 आया, यह एपीसी जो है ये मेरा 2, दिस इज ग्रेटर देन 1. सो एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1. इट हैपेंस व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. ये क्लियर हो गया? दूसरा चीज बता रहा हूं आपको, द वैल्यू ऑफ एपीसी राइट डाउन कैन बी. दूसरा द वैल्यू ऑफ एपीसी can be equal to 1. Can be 1. It happens when consumption is equal to income. Consumption is equal to इनकम. आप देख लो इट हैपेंस व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. ये जब कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम के तो एपीसी का वैल्यू 1 होगा. यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो एपीसी इक्वल टू 1. तो ये कब होगा एपीसी इक्वल टू 1? जबकि एपीसी इक्वल टू 1 कब होगा? सी इक्वल टू वाई, दोनों बराबर. देखो यहां पे आपका अगर वाई मान लो, अगर सी पहले सी लिख लो, कंजम्पशन आपका 5000 है और वाई भी आपका 5000 है. तो एपीसी क्या हो जाएगा? एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई. तो 5000 सी डिवाइडेड बाय वाई. बोलो 1 आया कि नहीं आंसर? एपीसी का वैल्यू 1 आया. तो जब दोनों बराबर होगा, एपीसी कंजम्पशन और इनकम के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू एपीसी इक्वल टू 1 लिख लो यहां पे ब्रैकेट अंतिम में, तब फुल स्टॉप दो.
एपीसी जो होगा, ठीक से मैं अच्छा से लिख देता हूं फिर से, ये कब होगा, एपीसी इक्वल टू 1 व्हेन इनकम कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, एपीसी इक्वल टू 1 होगा, एपीसी को वैल्यू 1 आएगा। तीसरा जो कंसेप्ट है इसका, एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, पता है, लिख लो, एपीसी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो ना हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज पता है आपको कि इवन एट जीरो लेवल सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। जब भी कंजम्पशन का वैल्यू रहेगा, चाहे वो 5 हो, 1 हो, 2 हो, 1000 कुछ भी हो, तो हमारा जब डिवाइड करेंगे इनकम से, इनकम सॉरी, जब ही हम डिवाइड करेंगे, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, सॉरी एक जस्ट मिनट, ये एपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख लो नेगेटिव, क्योंकि एपीसी कंजम्पशन मेरा कुछ भी है, इनकम कुछ हो, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। जीरो तो हो सकता है जब हम अनडिफाइंड करेंगे, जब जीरो बाय, मान लो कि मेरा कंजम्पशन 5000 है, इनकम ये ऑर्गेनाइज कंजम्पशन, और इसको 22 से हम डिवाइड करते हैं, जीरो है, ये तो अनडिफाइंड आ जाएगा आपका। तो यहां कहने का मतलब ये है कि कंजम्पशन कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, जब जीरो नहीं हो सकता है तो नेगेटिव कहां से होगा, सिंपल सी बात है। फोर्थ हमें जो सीखना है वो है कि एपीसी डिक्रीजेज, एपीसी डिक्रीजेज या फॉल्स, इट इज इन इजी लैंग्वेज लिख लो आप लोग, एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करता है तो वैल्यू ऑफ एपीसी, हम लोग शेड्यूल से निकाल के बताएंगे लेटर ऑन कि वैल्यू ऑफ एपीसी फॉल्स। सो ये चारों आप लोग याद रख लो, एपीसी कैन बी ग्रेटर, इट हैपेंस व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। दूसरा याद रख लो, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी 1, इट हैपेंस व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। एपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव, और तीसरा है एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीजिंग इनकम। ये चारों आप लोग कंसेप्ट याद रख लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी, दूसरा कंसेप्ट जो है, एक कंसेप्ट हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। अब मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताने जा रहा हूं। So note down now marginal propensity to consume. These are very important topic. Numerical is based on this concept. Numerical इसी concept पे आधारित रहेगा, मैं बता देता हूं अभी। आप लोग ध्यान से इसको देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको। Try to understand properly. उस दूसरा concept जो है, दूसरा वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट डाउन एमपीसी। ये क्या है? Write down MPC is the ratio of change in consumption to change in income. So MPC is the ratio of change in consumption to change in income. Thus, in algebraic form, we can write this: MPC equal to delta C
by delta y. MPC equal to what? Delta C. Delta represents change. Delta means change. Change it is the ratio of change in consumption to change in income. Marginal propensity. Marginal propensity to consume means what? An additional. Marginal means always you will remind कि जब एक एडिशनल इनकम बढ़ता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, जैसे हम लोग शुरू से लेते आ रहे हैं, y है और यहां पे c है, ये इनकम है मेरा, ये कंजम्पशन है, ध्यान देना। सो हम लोग मान लो कि ये जैसे हम लोग लेते हैं 0 है इनकम पहले और 20 है, या कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बार बार की 100 है इनकम मान लो, और कंजम्पशन मेरा 80 है, 100 रुपया है, कंजम्पशन 80 है। अब मान लो क्या हो जाता है, ये 200 हो जाता है, और ये मेरा 200 हो गया, और ये मेरा हो जाता है मान लो 120। ध्यान देना, कंजम्पशन बढ़ेगा एज इनकम इंक्रीज है, इनकम 100 से 200 हो गया है, तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन देखो चेंज कितना आया है। एमपीसी अगर कहेगा निकालने के लिए, एमपीसी कितना है, एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, 120 माइनस 80 करोगे तो यू विल गेट 40, तो यहां पर 40 लिखोगे, डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम कितना हुआ है, 100 हुआ है, 100 से बढ़ के 200 हो गया, तो यहां पे 100 हुआ है। अब देखो एमपीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 0.4, तो एमपीसी मेरा 0.4 आया। ये चेंज इन इनकम टू चेंज इन कंजम्पशन को हम लोग एमपीसी कहते हैं। अब ध्यान देना कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, एमपीसी के कुछ फीचर्स हैं, और थोड़ा मैं एमपीसी को और अच्छी तरह से बताऊंगा, फीचर्स सीख लो, उसके बाद मैं और बताऊंगा। फीचर्स ऑफ एमपीसी, राइट ऑन। पहला, एमपीसी इज ऑलवेज, एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये 0 से अधिक होता है, ये 0 है, एमपीसी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये मैं भी क्लियर करूंगा क्यों। दूसरा लिख लो आप लोग इसका, द वैल्यू ऑफ एमपीसी, ऐसे लिख दो, द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज ऑलवेज greater than, less than 1, और 1 से कम होगा। एक ये यूनिट है, हमेशा ध्यान देना, ऑलवेज वी यूज इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, और एमपीसी इज लेस देन 1। व्हाट इज दिस, ये 1 है क्या, हम अभी क्लियर कर रहा हूं दोनों चीज को। 1 क्या है और ग्रेटर देन से 0, 1 का मतलब एक नहीं होता यहाँ, 1 मींस यूनिट, एक यूनिट है। व्हाट इज दिस यूनिट, सपोज मैं ये दो फीचर्स आप लोग लिख लो, मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूं ये चीज है क्या एमपीसी। मान लो मेरा इनकम 100 है और ये कंजम्पशन मेरा 80 अभी लिया था एग्जांपल, सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग। तो अगर मेरा इनकम 200 हो जाता है, इनकम हैज इंक्रीज्ड, 100 बढ़ा है, और तो यहां पर कंजम्पशन 180 नहीं हो सकता, कंजम्पशन 180 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 100% जितना इनकम बढ़ा उतना ही बढ़ जाएगा कंजम्पशन में भी, क्योंकि 100 इनकम बढ़ा, 100 इसमें बढ़ोतरी हुई, 80 था पहले 180 हुई, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों, इसलिए पहला फीचर है कि वैल्यू ऑफ एमपीसी इज ऑलवेज लेस देन 1 का मतलब हुआ यूनिट। यहां यूनिट इंक्रीज कितना है, 1 यूनिट इंक्रीज इन इनकम 100 है, 1 यूनिट इंक्रीज 100 इंक्रीज हुआ है, तो ये 1 यूनिट इंक्रीज इनकम नहीं बढ़ सकता है, ये 100 यूनिट कंजम्पशन यहां नहीं हो सकता है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमको फीचर्स इसका। तो ये जब भी होगा 100 से कम होगा, 1 यूनिट, 1 से 1 यूनिट, ये दिस इज 1 मींस 1 यूनिट 100,
तो कंजम्पशन में जब भी बढ़ोतरी होगी 100 से कम होगा। ये हमारा 800 में जोड़ लो आप, 100 से कम 130 हो सकता है, 140 हो सकता है, ये 100 से कम 180 से कम ही होगा कंजम्पशन की वैल्यू, 100 इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन 80 से ऊपर होगा, क्यों? कि एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। व्हाट इज दिस ग्रेटर देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ा है, लॉ ऑफ कंजम्पशन कह रहा है कि एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज। यहां 80 नहीं हो सकता, तब तो एमपीसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और कहता है कि एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा होता है, तो जीरो तो होगा नहीं। तो यहां पर कंजम्पशन अगर 200 इनकम है तो 80 हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एमपीसी ग्रेटर देन जीरो होता है, जीरो से अधिक। जीरो क्या है कि ये जो मेरा एमपी कंजम्पशन है वो 80 से अधिक होगा, लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है। ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने डिराइव किया था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो वैल्यू ऑफ जीरो से अधिक होगा, यानी ये हमारा 90 हो सकता है, 80 से ऊपर और 180 के बीच में हो सकता है। ये 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 160 हो सकता है, 180 नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 बढ़ेगा नहीं, यहां ग्रेटर देन 1 एमपीसी नहीं हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एपीसी एज वेल एज एमपीसी। और तीसरा है एमपीसी फॉल्स। तीसरा ध्यान रखना, एमपीसी जो है वो गिरता है, एमपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। ये भी तीसरा फीचर आप लोग याद रखना। तो अब एमपीसी के बारे में और जो सीखनी है वो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज सीख लेना, एमपीसी को ही हम लोग स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व। ये मेरा कंजम्पशन कर्व है, यू कैन सी दिस इज द कंजम्पशन कर्व एंड चेंज, ये जो चेंज आती है ये डेल्टा वाई हो गया, और ये यहां से इस पॉइंट से मान लो ए से बी, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट पे हम जाते हैं, तभी चेंज निकालेंगे ना, चेंज तभी होगा ना हमारे बीच। तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई, इसी के रेशियो को हम लोग एमपीसी कहते हैं, जिसे कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं। इसका काम आएगा, जिसका इक्वेशन होता है, हम जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व में सीखेंगे इसको, अभी तुरंत हम लोग बताएंगे। तो अब आपने सीख लिया इसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका फीचर्स भी हमने बता दिया आपको कि ये ग्रेटर देन जीरो होता है और लेस देन 1 होता है। तो अंत में लिख लो आप लोग कि एमपीसी, ये फीचर्स याद रखना आप लोग, या यहां लिख लो एक जगह इंपॉर्टेंट प्लेस पे लिख लो इसको, एमपीसी इज ग्रेटर देन जीरो। सॉरी ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिख लो आप लोग, यहां बीच में एमपीसी लिखो, एमपीसी इज ग्रेटर देन जीरो और लेस का दे दो सिंबल, लेस देन 1। ये चीज याद रखना, तो आपको फीचर्स याद रहेगा हमेशा। एमपीसी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से अधिक होगा लेकिन 1 से कम होगा, इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा थोड़ा विशेष रूप से, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब वी शैल लर्न वेरी इंपॉर्टेंट लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। Now let us write down linear conjunction function. What is this? Try to understand. Write down linear conjunction function.
कंजम्पशन फंक्शन द मोमेंट लीनियर कर्व आता है ना, तो खैर चर्चा करता है, पर डिफिनेशन आप लोग लिख लो। इट मींस when, write down like this, when conjunction is assumed or given, when conjunction is given on the assumption of constant marginal propensity to consume, constant marginal propensity to consume, constant marginal propensity to consume, it is called linear conjunction function is linear conjunction function. What is this? When conjunction is given on the assumption of constant marginal propensity to consume, it is called linear conjunction function. constant marginal propensity to consume है क्या, हम बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये एक शेड्यूल के दौरान मैं बता रहा हूं आपको। देखो कांस्टेंट मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम, एमपीसी की वैल्यू सेम आएगी। जैसे कि ये इनकम है मेरा, ये कंजम्पशन है, और आप देखो इनकम 0, फिर 40, कांस्टेंटली वी आर इंक्रीजिंग। यहां पर कांस्टेंट चेंज हो रहा है, देखो आप इनकम में 40 80 20 40 40 का है कांस्टेंट चेंज। और ये जो ऑटोनमस कंजम्पशन है, फिर इसमें हम 40 तो बढ़ा नहीं सकते हैं, लॉ ऑफ कंजम्पशन रोकता है, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट लेस देन द इंक्रीज इन इनकम, तो उससे कम यानी 30 का हम लोग बढ़ाते हैं। तो यहां भी देखो आप कांस्टेंटली यहां मान लो 160 और 200, यही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये हमारा 120 और ये फिर हो जाता है 110 होगा यहाँ पे 110 और 140। तो हियर यू कैन सी द इंक्रीज जो है कांस्टेंट है, 30 से 40 50 नहीं हो जाता है। यहां कंजम्पशन मेरा 30 का इंक्रीज है, यहां पर से जोड़ो 50 30 सॉरी ये 110 होगा और ये हमारा 140 होगा और ये हमारा 170 होगा। अब देखो यहां पे कांस्टेंट चेंज हो रहा है, 30 30 30 हर जगह, 30 20 50 50 30 80 80 30 110 140 110 प्लस 30 140 140 प्लस 30, इट मींस इंक्रीज जो है हियर दैट इज ऑफ 30 और यहां जो इंक्रीज है दैट इज ऑफ 40। ये कांस्टेंट इंक्रीज है, ऐसा नहीं 40 यहां बढ़ा फिर यहां 45 हो गया यहां 50 हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट। यहां भी 30 बढ़ा, ऐसा नहीं 40 बढ़ गया या 60 बढ़ गया यहां 100 बढ़ गया, इट इज नॉट, there is constant change, whatever change is taking place the same is increasing in second when income increases. So this is the constant increase in consumption as well as in income if the consumption function is given on the constant marginal propensity to consume, तो इसे हम कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अब तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में क्या होता है ना कि
आपको इक्वेशन जो होता है इसका, अगर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो गए तो लीनियर, फिर मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं पहले आपको। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन कर्व जो, अगर इसका कोऑर्डिनेट लेके आप बनाएंगे, दिस इज इनकम, यहां पर आप लोग इनकम लेते हो और यहां पे आप लोग कंजम्पशन यू आर मेजरिंग, कंजम्पशन दैट इज सी यू आर मेजरिंग वाई एक्सिस पे, ये y आपका है, ये x है, ये है और ये c कर्व मेरा है। तो स्ट्रेट लाइन यू आर गेटिंग, कांस्टेंट चेंज हो रहा है, ये दिस इज द दिस कर्व इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वी आर गिवन। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है आपको पता होगा कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा आपने, ये तो उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी मैथमेटिक्स में कि y इक्वल टू mx प्लस c, ये वैसे तो x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में लर्न x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, तो वो अभी जरूरत नहीं है, अभी हमें इसकी जरूरत है। ये जो है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म का ये स्लोप फॉर्म है। तो किसी भी कर्व का मैं थोड़ा यहां लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का हम इक्वेशन लिख देता हूं मैं। तो इक्वेशन ऑफ, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ लीनियर थोड़ा जगह कम हो जाएगा, लीनियर कंजंक्शन फंक्शन c इक्वल टू c बार प्लस b y, ये लीनियर इक्वेशन का कंजंक्शन है, वेयर c यहां पे कंजंक्शन है, राइट डाउन c इंप्लाई कंजंक्शन c बार, कई बार मैंने बताया है आपको ऑटोनोमस कंजंक्शन, और बी क्या है, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई इनकम है, सेवरल टाइम्स डिस्कस। ये एमपीसी है, बी इज एमपीसी, तो इसका इक्वेशन होता है C इक्वल टू ऑटोनोमस कंजंक्शन प्लस बी वाई, ये C इक्वल टू ऑटोनोमस कंजंक्शन प्लस बी वाई, ये लीनियर इक्वेशन का। यहां पे जो C बार है वो दिस इज C बार, देखो y इक्वल टू mx प्लस c, ये जो C बार है दिस इज C, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। अगर मैथमेटिक्स के आप लोग विद्यार्थी होंगे जानते होंगे कि ये लीनियर इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन के तीन इक्वेशन होते हैं, मैं बता देता हूं। एक जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मैं अभी लिखूंगा नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाएगा आपको, मैं बोल देता हूं आपको। दूसरा जो होता है वो जनरल इक्वेशन है, दूसरा होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन ये भी है। और तीसरा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। वो x a बाय b कुछ नहीं होता है, जैसे कि मान लो x बाय a लिखते हैं हम लोग, x बाय a प्लस y बाय b, इसका जरूरत है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इक्वल टू 1 जो है a b इज नथिंग बट इट इज द इंटरसेप्ट ऑफ x एंड y, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं जाना चाहता हूं। इतना समझ लो लीनियर इक्वेशन यहां पर ये जो ऑटोनोमस कंजंक्शन है y इंटरसेप्ट है, आप लोग देख लो, ये y इंटरसेप्ट मैंने ऑटोनोमस कंजंक्शन पे इंडिकेट किया है। b मेरा m है, दैट इज b क्या होता है, b इक्वल टू एमपीसी, मैंने भी बोला है, देखो यहाँ पे b इक्वल टू एमपीसी, ये b जो होता है एमपीसी है, दैट रिप्रेजेंट्स ये दिस m इज, ये जो है b को दर्शाता है m, स्लोप ऑफ, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको ना कि स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा c बाय डेल्टा y, तो एमपीसी है वो, दैट इज स्लोप।
और ये जो है एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं जो कि इनकम और कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं किसको, इनकम को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग कंजम्पशन को लेते हैं। तो दीज आर द वेरिएबल्स। आप लोग समझ गए होंगे कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन अच्छी तरह से। आप लोग इसको अच्छी तरह याद रखना। दूसरा वीडियो आएगा सेविंग फंक्शन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों को, क्योंकि इस सेविंग फंक्शन हम कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव करेंगे। आई थिंक आपको ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का भी कंसेप्ट अच्छी तरह से आ गया होगा। ये c = y = mx + c पर कंसेप्ट है। ये लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्म है और ये कंजम्पशन फंक्शन कर्व का इक्वेशन होता है c = ऑटोनोमस कंजम्पशन + dy। सारा चीज मैंने बता दिया। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन बताया जा चुका है, सारा चीज क्लियर हो चुका है। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।